नमो सिद्धानम। सभी को मेरा प्रणाम, जय जिनेन्द्र। आप सभी को जैन हेरिटेज सेंटर्स .com की जैन हेरिटेज सीरीज जैन परंपरा श्रृंखला में स्वागत है। मेरा नाम गौरव जैन है। हम अगले कुछ समय तक जैन भाषा, विज्ञान, साहित्य, मंदिर पद्धतियां, पुरातत्व के अनेक विषयों पर इतिहास और सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से व्याख्यान प्रस्तुत करेंगे। सभी स्पीकर्स, प्रेजेंटर्स, वक्ता इन विषयों में दशकों का अनुभव रखते हैं। आज के विषय जैन कला एवं परंपरा में सरस्वती तथा जैन धर्म में शुद्ध पंचमी और जिनवानी सरस्वती के हमारे आज के वक्ता डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा जी और अमन जैन शास्त्री जी का प्रणाम पूर्वक स्वागत करता हूँ। अमन जी भी थोड़े समय में हमें ज्वाइन करेंगे। हम इस श्रृंखला हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, अन्य भारतीय भाषाओं में लाने का प्रयास करेंगे, जिससे अधिक से अधिक वक्ताओं को हमें सुनने का अनुभव प्राप्त हो तथा हम ज्ञान अधिक से अधिक श्रोताओं तक पहुंचा सके। आज का व्याख्यान हिंदी में होगा, पर आप किसी भाषा में प्रश्न पूछ सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल सके। मैं सभी श्रोताओं से स्वागत करता हूं और अनुरोध करता हूं कि अपना माइक बंद रखें, म्यूट पर रखें तथा अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिखें। हम दोनों ही सेशंस के बाद क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे और दोनों ही व्याख्यानों के बाद इसके लिए समय दिया जाएगा। मैं आज की प्रस्तावना और मंगलाचरण के लिए नितिन एचपी जी को आमंत्रित करता हूँ। नितिन जी जैन हेरिटेज सेंटर्स के फाउंडर हैं। में प्रयासरत हैं, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे। इस जैन परंपरा श्रृंखला के पीछे के प्रेरणा स्रोत यही है। उनसे अनुग्रह है कि अपनी भावना को व्यक्त करें। नितिन जी। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहूणम्। ओंकारं बिंदु संयुक्तं जयन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। श्रीमत्परमगम्भीरस्याद्वादामोघलाञ्छनं जिया त्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय जिनेन्द्र। ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ ಎವ್ರಿವನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜೈ ಜಿನೇಂದ್ರ, ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ .com 2002ರಲ್ಲಿ ಏನು ಕನಕಗಿರಿಯ ಭುವನಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾರಕ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರ ಪವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೆಸರಾಂತ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಂತಹ MD ವಸಂತರಾಜರವರ ಅಮೃತ ಹಸ್ತದಿಂದ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಂದಿನಿಂದ ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳು, ಹೋರಾಟಗಳು, ಯೋಜನೆಗಳು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳೆದ 19 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸತತವಾಗಿ ಎಡೆಬಿಡದೆ ಕಾರ್ಯನಿರತವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ, ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಹಲವಾರು ಜನರನ್ನ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಸಂಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸಂಧಿಸಿದಾಗ ಅನ್ಸಿದ್ ಒಂದೇನೆ, ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳು, ಕನ್ನಡ, ಹಿಂದಿ, ಗುಜರಾತಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮರಾಠಿ, ಮಲಯಾಳ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಪ್ರಾಕೃತ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು, ಇದಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಾದ ಜರ್ಮನಿ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹಲವಾರು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಜೈನ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ಕೆಲಸ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನರು ಜೈನೇತರರು, ಕನ್ನಡಿಗರು ಕನ್ನಡೇತರರು, ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತೀಯೇತರರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜನ, ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದಲ್ದೇನೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಯುವಕರು ಕೂಡ, ಹೆಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ಕೂಡ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಈ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ತೊಡಕಾಗೋದು, ಅಥವಾ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸರುಗಳು ವಿಷಯ ಹೊರಗೆ ಬರದೇ ಇರೋದು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಚಾಲೆಂಜಸ್ ಇನ್ನಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಲವಾರು ದಿನಗಳ ಚರ್ಚೆ, ನಮ್ಮ ತಂಡದವರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆ, ಭಟ್ಟಾರಕರು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗಿನ ಚರ್ಚೆಯಿಂದಾಗಿ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ನಾವು ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಮಾಲಿಕೆ, ಜೈನ ಪರಂಪರೆ ಮಾಲಿಕೆ ಅಥವಾ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್, ಜೈನ್ ಪರಂಪರಾ ಶೃಂಖಲ ಇದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದ್ರ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಥವಾ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜೈನ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು, ಕನ್ನಡ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಹಿಂದಿ ಇರ್ಬೋದು, ತಮಿಳು ಇರ್ಬೋದು, ತೆಲುಗು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಭಾಷೆ ಇರ್ಬೋದು, ಭಾರತೀಯ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ವಿಶ್ವದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ 15 ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆನೋ ಸೇರಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜೈನ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಅದಲ್ಲದೇನೆ ಹೆರಿಟೇಜ್ ವಿಷಯಗಳು ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಶುರುವಾದಂತ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂದ್ರೆ ಜೈನ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೀರೀಸ್. ಅದರ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಏನು ವೆಬಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. Jai Jinendra friends, Jain Heritage Centers was founded in 2002 on May 26th in the presence of His Holiness Swasti Shri Bhunakirti Bhattaraka Swamiji of Kanakagiri Jain Math, and it was inaugurated by Professor M.D. Vasantaraj, one of the greatest Jain scholars and a Prakrit scholar who was revered all world over. Since 2002, we have been working on and off on many projects, initiatives, and also movements related to Jainism. And at the end of the day, it was all focused about bringing Jainism and Jain heritage to the light. When we were working across these years, what we have found is, we have found Jains, non-Jains, Kannadigas, non-Kannadigas, North Indians, South Indians, West Indians, Eastern Indians, Indians, foreigners, people across the world have worked across Jainism over the centuries, and they have been working. And we have also seen youngsters and aged people and people across all age groups being working on multiple initiatives. When all this is happening, what we felt was somewhere the research work, particularly the heritage work, the archaeological work, the inscriptional research work, somewhere they're not getting projected because of various reasons, maybe because of language barrier, or maybe because of regional barrier, or many other reasons. So that is when we thought we should find a program which will be a common platform for people of all ages, all regions, all countries, and all languages, and all religions. End of the day, the objective is only Jainism, Jain heritage, and Jain archaeology, and Jain philosophy, but particularly main focus on Jain heritage and archaeology. That is when we thought we should start a series, something like that. That is how we started with Jain Heritage series. In Jain Heritage series, we'll be focusing mainly on the Jain heritage, archaeology, and inscriptions and temples and idols. At the same time, whenever philosophy matters, for example, today's topic, we know Jinavani Saraswati, the Shruta Panchami, the Shruta Skanda, and all the concepts are there. When that is required, we will bring in the philosophical angle plus the archaeological angle to it. So that's how we have started with this. With this, today is the launch of the first of its webinar series as part of the Jain Heritage series on Jinavani Saraswati, Shruta Skanda, Jinavani Saraswati, and its importance in Jainism with a philosophical as well as an archaeological background. With this, we are starting off with our Jain Heritage series. Thank you all for being a part of this initiative. We look forward for all your feedbacks, support, all throughout the ages, all throughout the years as we move ahead. Thank you. Jai Jinendra. Over to you, Gauravji. धन्यवाद नितिन। अब मैं हमारे प्रथम विषय की ओर चलता हूँ। आज का विषय, पहला विषय है जैन कला परंपरा में सरस्वती, और हमारे आज के वक्ता हैं डॉक्टर शांति स्वरूप सिन्हा जी। धन्यवाद सिन्हा जी हमें आज अपनी सहमति देने के लिए। डॉक्टर सिन्हा जी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट्स एंड डिजाइन के पद पर कार्यरत हैं। इन्होंने जैन और अन्य अनेक विषयों पर गहन अध्ययन, अध्यापन, अनुसंधान, रिसर्च वर्क किया है, और पर्टिकुलरली बिकॉज हमारा सब्जेक्ट जैनिज्म है तो कुछ इनके महत्वपूर्ण कार्य हैं, जैसे बहुत रिसर्च पेपर्स हैं। कुछ रिसर्च पेपर्स में उनके बारे में बताना चाहूँगा। जैन परंपरा एवं कला में
वैदिक पुराणी देवी देवता, जैन परंपरा कला साहित्य में गोमटेश्वर बाहुबली, और कई पुस्तकें जैसे जैन कला तीर्थ देवगढ़, जो मेरे पास भी उसकी एक प्रति है, और वो बहुत ही अच्छी बुक आई उससे, कि बहुत ही अच्छी किताब वो लगी मुझे पुस्तक। खजुराहो के जैन मंदिर मूर्तियां और जैना आर्ट एंड एस्थेटिक्स, ये और इनके अलावा बहुत सारा काम है जो ये करते रहते हैं। और आज अपने इस अपने शेड्यूल में से हम इन्होंने हमें समय दिया, उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। वर्तमान में डॉक्टर सिन्हा जी भारत और यूएस गवर्नमेंट के रिसर्च प्रोजेक्ट से भी जुड़े हुए हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि आप हमारा ज्ञानवर्धन करें। सिन्हा जी। सभी को प्रणाम, जय जिनेन्द्र। अच्छा लगा नितिन जी ने जब पहली बार रिक्वेस्ट किया, तो संभवतः हम भी नहीं जानते थे नितिन जी को, और नितिन जी शायद हमें भी नहीं जानते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण विषय श्रुत पंचमी के उसमें सरस्वती पे व्याख्यान के लिए मुझे आमंत्रित किया। इसके लिए जैन हेरिटेज सेंटर और विशेष रूप से नितिन जी, गौरव जी, प्रसन्ना जी, अजीत जी, जितने लोग भी यहाँ सभी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। जहाँ तक सरस्वती का प्रश्न है, सरस्वती हम सभी जानते हैं ज्ञान के देवी। कोई भी धर्म, कोई भी भाषा या कोई भी परंपरा का वजूद, उसका अस्तित्व तभी है जब उसमें ज्ञान का सम्मिश्रण है। इसलिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी होने के नाते कम से कम भारतीय परंपरा के जो 3 प्रमुख धर्म हैं, वैदिक पौराणिक, जिसे हम ब्राह्मण धर्म या हिंदू धर्म भी कह लेते हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, तीनों ही परंपराओं में सरस्वती की वंदना, पूजन और एक तरीके से कहें कि मूर्ति निर्माण की परंपरा बहुत प्रारंभ से रही। जैन परंपरा में, जैन आराधना में श्रुत देवता के रूप में आपकी प्राचीनता, सरस्वती की प्राचीनता महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्हें जिन वाणी कहा है, यानी वह एक तरीके से वाणी का रूपांतरण, मैनिफेस्टेशन ऑफ वायस। और वायस किसका? सीधे तीर्थंकरों का, जिनों का, और उन्हें सरस्वती के रूप में जाना गया। जैन धर्म में खास करके सरस्वती की साधना अज्ञानता तथा दुखों को दूर करने के लिए की गई। ब्राह्मण परंपरा में जहां सरस्वती को विद्या के साथ ललित कलाओं से संबद्ध प्रारंभ से माना गया, जैन परंपरा में ऐसा नहीं था। जैन परंपरा में प्रारंभ से लगभग 9वीं सदी ईस्वी तक उन्हें केवल ज्ञान की देवी माना गया, और 10वीं सदी के आसपास उन्हें अन्य कलाओं, ललित कलाओं, इनसे जोड़ा गया। और उसके बाद आप कह सकते हैं कि बात आती है कि उन्हें अन्य चीजों से, आप कह सकते हैं कि तांत्रिक परंपरा से भी जोड़ा गया। जैन परंपरा में इन्हें वाक देवी, जिनवाणी, श्रुत देवता, शारदा, भारती, वाक देवता, वागेश्वरी, वाणी, ब्राह्मी के रूप में हमेशा स्तमन किया गया। और इसके प्रमाण हमें बहुत पहले से, बहुत प्रारंभ से ही मिलने प्रारंभ हो जाते हैं, चाहे वो भगवती सूत्र हो, पौमचर्य हो, महानिश्चित सूत्र हो, पाक्षिक सूत्र हो, सरस्वती कल्प हो। इन तमाम जगह हमें सरस्वती का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वह स्तमन मिलने लगता है प्रारंभ काल से। यही परंपरा हमें वैदिक परंपरा में भी दिखाई पड़ती है, लेकिन अंतर एक है
उस अंतर पे हम थोड़ी देर बाद आते। जैन परंपरा में यही कारण है कि ज्ञान पंचमी के रूप में, श्रुत पंचमी के रूप में, ज्ञान पंचमी श्वेतांबर परंपरा में और श्रुत पंचमी दिगंबर परंपरा में मनाने की जो परंपरा है, यह स्वतः ही सरस्वती का जैन परंपरा में लोकप्रियता को सिद्ध करता है। इसमें कुछ अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ सामान्य रूप से अगर हम देखें तो जैन धर्म में सरस्वती की चर्चा बहुत प्राचीन काल से हमें दिखाई पड़ती है, और इसके लिए मैं सीधे स्क्रीन से बात करूं ज्यादा बेहतर होगा। स्क्रीन शो हो रहा है क्या? जी सिन्हा जी, अभी होम पेज हो रहा है, अभी पीपीटी ऑन करना पड़ेगा। सर आपका पीपीटी ऑन करना पड़ेगा, मैं दिख रहा है सर जी। हाँ सर दिख रहा है सर। हमने तो पीपीटी ऑन कर दी हुई है। आ गया है सर। दिख रहा है? जी सर। अच्छा हाँ सर। तो जैसा कि हमने कहा, जिनवाणी के रूप में, वाक देवता के रूप में, ये तमाम रूपों में सरस्वती के पूजन की परंपरा जैन परंपरा में, खास करके मैं अब केवल जैन परंपरा की बात करूंगा। जैन परंपरा में अन्य जो परंपराएं थी, उन्हीं अगर उनसे हम तुलनात्मक भी अध्ययन करें, उनसे हमें एक कंपैरेटिव स्टडी करें, तो हम पाते हैं कि जैन परंपरा में सरस्वती का पूजन बहुत पहले से, कम कुषाण काल से तो प्रारंभ हो ही चुका है। और इसके साहित्यिक संदर्भ हमें बहुतायत मिलते हैं। बहुतायत जब मैं कह रहा हूं तो उसका अर्थ है कि बहुतायत मिल रही है, और ये बहुतायत हम यूं कह सकते हैं कि दो प्रकार के ग्रंथ मिलते हैं। एक वो ग्रंथ जो 9वीं सदी के बाद, यानी 10वीं सदी के बाद जो ग्रंथ लिखे गए, उनमें सरस्वती के पूजन के साथ ही साथ सरस्वती के साथ तांत्रिक प्रभाव भी जुड़ जाता है। और वो तांत्रिक प्रभाव जुड़ने का कारण ये था कि उन्हें सरस्वती की जो जिनवाणी थी, अब उन्हें सारस्वत शक्ति के रूप में माना जाने लगा, और उनसे कई तरीके की अपेक्षाएं की जाने लगी। अगर हम केवल साहित्य की बात करें तो आप देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर है, व्याख्या प्रगति है, पाक्षिक सूत्र है, और क्षमा श्रवण वृत्ति है, उसके साथ संसार धनावल स्रोत है, महानिशित चूर्णी है। और तांत्रिक साहित्य के अगर हम चर्चा करें तो तांत्रिक साहित्य के अंतर्गत प्रभावक चरित्र, प्रबंध चिंतामणि, प्रबंध कोश, कुमारपाल चरित्र, और इसके अलावा भारती कल्प, सरस्वती कल्प, सारस्वत मंत्र पूजा, जय संहिता, तमाम। अब अगर आप ये सोचें, केवल सोच के देखें कि सरस्वती जो कि तीनों ही परंपराओं में कामन रही, ज्ञान की देवी रही, सबसे ज्यादा अगर ग्रंथों का प्रणयन हुआ तो वह जैन परंपरा में हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि ज्ञान और पवित्रता, दो चीज इनके साथ जुड़ी हुई है। ज्ञान यानी नॉलेज, एंड प्योरिटी, पवित्रता। और इसीलिए उनके साथ हंस दिखाया। हंस का गुण क्या है? दीर्घीर विवेचन, और इस गुण के कारण उनके साथ हंस का दिखाना। और इसी कारण ज्ञान और पवित्रता की देवी होने के साथ वो उनके वाहन के रूप में हंस, करों में पुस्तक, अक्षमाला, वरद मुद्रा, जलपात, और इन सारी के मायने, पुस्तक ज्ञान, अक्षमाला उसकी निरंतरता, कंटिन्यूटी, क्योंकि कोई भी ज्ञान स्थिर होके नहीं चल सकता, उसके लिए उसकी निरंतरता की आवश्यकता होती है। इसलिए जैसे आज हम लोग बात कर रहे हैं, तो यह बात रुकनी नहीं चाहिए, यह कंटिन्यू चलनी चाहिए। चलने से ही इसकी बात बढ़ेगी, कुछ नई बातें आएंगी और हमारा ज्ञानार्जन होता जाएगा। अगर ये बात आज के आज रुक गई तो फिर इस ज्ञान का कोई मतलब नहीं। इसलिए उनके हाथों में अक्षमाला, वरद मुद्रा, ताकि वह ज्ञान स्थायी रहे, चिर स्थायी रहे, और जलपात,
जल की अनिवार्यता हम जानते हैं कि सभी परंपराओं में जल की जो अनिवार्यता है वो जल आज मनुष्य के जीवन के लिए कितना आवश्यक है उन सारे संदर्भों में ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो बप्प भट्टीसुरी ने जो शारदा स्तोत्र लिखा उसके अगर साहित्यिक संदर्भ को देखें और जो पहला हमें उदाहरण मिल रहा है वह उदाहरण मिल रहा है मथुरा से कंकाली टीले से मिल रहा है। अर्लीस्ट जैन इमेज, अर्लीस्ट सरस्वती इमेज इन इंडियन आर्ट। बड़ा मजेदार है। सरस्वती कहते ही ब्राह्मण परंपरा की देवी आती है, लेकिन जो सबसे पहली मूर्ति अब तक ज्ञात है वह जैन परंपरा से मिली है, वो ब्राह्मण परंपरा से नहीं मिली, वो बौद्ध परंपरा से नहीं मिली है। वो आपके सामने स्क्रीन पे है। यह कंकाली टीला मथुरा से वेल स्क्राइब्ड है, क्योंकि आप इसमें जिनको नहीं देख पा रहे हैं, सरस्वती के लिए अगर केवल एक पुस्तक को छोड़ दें तो कोई और आधार नहीं है इसे पहचानने का। लेकिन कंकाली टीले से मिलना पहली बात। आज ये स्टेट म्यूजियम लखनऊ में सुरक्षित है, उसका एक सेशन नंबर आप देख रहे हैं और डेटेड है 132 ईस्वी और उस पर नाम मिलता है, बाकायदा नाम मिलता है सरस्वतो। पहली बार केवल प्रतिमा नहीं मिल रही बल्कि उसके साथ साथ नाम मिल रहा है। और कौन स्थापित करा रहा है? उस लिखता है प्रतिष्ठापिता आर्यदेव, यानी आचार्य आर्य देव के उसमें स्थापित हो रहा है। और किस लिए स्थापित कराया? सर्वसत्वानाम हित सुखय। यह महत्वपूर्ण ये है। केवल सरस्वती प्रतिमा महत्वपूर्ण नहीं है, उसके पूरे आयाम को देखना पड़ेगा और तब इसकी महत्ता समझ में आती है कि सर्वसत्वानाम हित सुखय, यानी सभी, केवल जैनों के लिए नहीं, केवल व्यक्ति विशेष के लिए नहीं, केवल परिवार के लिए नहीं। और जो भारतीय दर्शन है, भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति जो वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, जो सबको समवेत साथ लेके चलने की संस्कृति है, जो सभी के हित सुख की कामना करती है। पहली मूर्ति, प्राचीनतम मूर्ति संदेश क्या देती है? सर्वसत्वानाम हित सुख है, वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस एंड वेलफेयर फॉर ऑल बीइंग्स, यानी सभी का कल्याण हो, सभी खुश रहें। यह और महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है कि इसे निर्माण इसका कौन कर रहा है? इसका निर्माण कर रहा है जो ब्लैक स्मिथ है, लुहार। और कहा वो लिखता है सर्वसत्वानाम, आप यहाँ पे स्क्रीन पे अपने देख सकते हैं, गोवस्य सोहस्य पुत्रस्य लोहिका कारुस्य दानम सर्वसत्वानाम हित सुखा एक सरस्वतो प्रतिष्ठाविता अवतले रंग ताने। महत्वपूर्ण ये है, महत्वपूर्ण ये है। केवल इतना ही महत्वपूर्ण नहीं है कि वो पहली प्रतिमा है, महत्वपूर्ण ये है कि वह सभी के हित सुख के लिए है। और किसके लिए? देखिए, सांकेतिक रूप में वहां पे अवतलो रंग ताने, रंगशाला में प्रतिष्ठापित की जा रही है। यानी जो बात मैं पहले ही कह रहा था कि जैन परंपरा में 10वीं शती ईस्वी के बाद कहीं जाके इन्हें अन्य ललित कलाओं से जोड़ा जाता है, लेकिन अगर इस शब्द को पकड़ें तो वहां पर संगीत या नाट्य की परंपरा का प्रादुर्भाव यहाँ पर हो जाता है, जो एक अलग संकेत देता है। इसे भी हमें ध्यान में रखना होगा। तीसरी बात, इसमें बहुत सारी कथाएं हैं, बप्प भट्टीसुरी की है, वर्धन कुंजर की है। वो कथाओं पे समय हम लोग के पास कम है, उन कथाओं को आप लोगों ने पढ़ा होगा या पढ़ लेंगे, उसमें नहीं जाता। किस तरीके से? महत्वपूर्ण क्या है कि सामान्य रूप से देवी को प्रारंभ में ये जो मूर्ति है, इसमें आप देख रहे हैं कि देवी द्विभुज है, लेकिन सामान्यतया सभी ग्रंथों में देवी को 2, 4
या उससे अधिक भुजाओं वाला और विविध आयुधों से युक्त बताया गया है। श्वेतांबर और दिगंबर परंपरा में मूर्तियों में कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है। अंतर क्या है कि श्वेतांबर परंपरा में देवी का वाहन हंस है, जबकि दिगंबर। कोई प्रश्न था क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आप कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, जबकि दिगंबर परंपरा में ये ऐसा है नहीं, यह ग्रंथ बोल रहा है। श्वेतांबर परंपरा में हंस और दिगंबर परंपरा में मयूर वाहिनी कहा गया। सामान्यतया दोनों ही परंपराओं में हमें हंस और मयूर दोनों का अंकन मिलता है। महत्वपूर्ण यह है कि जैन परंपरा में अगर हम बात करें तो जैन और ब्राह्मण परंपरा में एक अद्भुत समानता है, अद्भुत समानता है। और समानता क्या है? दोनों ही परंपराओं में प्रतिमा और उनकी प्रतिमाओं में सरस्वती के करों में, हाथों में पुस्तक, वीणा, अक्षमाला, कमंडलू, और चूंकि यज्ञ की देवी है, ज्ञान की देवी है, इसलिए श्रुक है। ज्ञान पर अंकुश का है, इसलिए हाथ में पाश और अंकुश जैसे आयुध दिखाए गए। क्योंकि जब ज्ञान बहुत ज्यादा बढ़ता है, हम सभी जानते हैं, तो हम अहंकारी हो जाते हैं। हम ही समझते हैं कि हम ही सब कुछ हैं। देखिए, मूर्तियां कहती कुछ नहीं है, मूर्तियां अपने आप में मौन होती है, लेकिन मौन में जो संवाद वो करती हैं वो शायद शास्त्र को समझाने से ज्यादा, क्योंकि वह उस लेवल पे बात करती हैं, एक ऐसे लेवल पे जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, और एक उस लेवल पे भी जाके बात कर लेती हैं जो बहुत पढ़ा लिखा है, हर चीज जानता है। लेकिन मूर्तियां संकेतों में बात करती हैं, और इसीलिए दोनों ही परंपराओं में मूर्तियों के सरस्वती प्रतिमाओं के साथ पुस्तक, वीणा, अक्षमाला, कमंडलू, श्रुक, अंकुश, पास जैसे आयुध दिखाए गए, और इनका एक आइकोनोग्राफिक टेक्स्ट भी इनका वर्णन करता है। जैसे आचार्य दिनकर शुभ चंद्रकृत सरस्वती यंत्र पूजा हो, या चतुर्विंशतिका हो, शारदा स्तोत्र, सरस्वती यंत्र पूजा, सरस्वती कल्प, भारती कल्प, निर्वाण कलिका, इन सारे में बाकायदा सरस्वती के, आप कह सकते हैं, एक आइकोनोग्राफी मिलती है। चूंकि नितिन जी ने हमसे कहा था कि थोड़ा आइकोनोग्राफी के ऊपर आप प्रकाश डाल दीजिएगा, तो मैंने सोचा कि इसमें आइकोनोग्राफी को भी थोड़ा सा इनबिल्ट करो। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण बात है जो आप आगे मूर्तियों में देखेंगे। बप्प भट्टी सूरी के सरस्वती कल्प में सरस्वती यंत्र पूजा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात कही गई, जो आगे हमें मूर्तियों में दिखाई पड़ती है। वो कहते हैं, इस ग्रंथ में कहते हैं, और सरस्वती कल्प का 69 to 76 अगर आप नोट करना चाहें तो नोट करिए। उसमें ये कहा गया कि सरस्वती मंडल या यंत्र में अन्य के साथ 16 महाविद्याओं, अष्ट दिक्पालों, अष्ट मातृकाओं, अष्ट भैरव के पूजन का उल्लेख मिलता है। प्रारंभ में यह स्थिति बनी रही, लेकिन मध्यकाल आते आते जैन परंपरा में सरस्वती पूजन में तांत्रिक प्रभाव को स्वीकृति मिलती है, और उनके, लेकिन जहां तक ग्रंथ हैं, जो साहित्य है, उसमें तो साहित्यिक प्रभाव आ जाता है, लेकिन आप बहुत कम ऐसी मूर्तियां पाएंगे जिसमें त्रिनेत्रा वो हो, त्रिनेत्र हो, खुली आंखें हो। वैसा हमेशा सरस्वती को बड़ा अनुग्रहकारी, शांत, सौम्य बनाने की ही चेष्टा की गई, कभी उनके भयंकर दर्शना नहीं बनाया गया। यानी साहित्य तो कहता है कि वो तंत्र की बात करता है,
साहित्य के बाद यंत्र पूजा की बात, और प्रैक्टिस में वो यंत्र पूजा और ये सारी चीजें आ गई, लेकिन मूर्तियों में इस तरीके का स्वरूप नहीं दिखाई पड़ता। यानी जैन परंपरा में मध्यकाल में सरस्वती पूजन के संदर्भ में तांत्रिक प्रभाव आने के बाद भी जैन सरस्वती मूर्तियों का अनुग्रहकारी और शांत सौम्य स्वरूप ही प्रदर्शित हुआ। कुछ उदाहरण में विद्या और संगीत या ललित कला की देवी होने के साथ कुछ तांत्रिक भाव हमें जरूर दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वह इतने प्रभावी नहीं है। शास्त्र और शिल्प दोनों की अगर हम कंबाइंड स्टडी करें, दोनों को अगर हम कंपेयर करें, एक बात स्पष्ट है, वो ये है कि दोनों में ही सरस्वती का चतुर्भुजी जो रूप है, 4 भुजाओं, 4 से अधिक भुजाएं भी बनी, लेकिन जो सर्वाधिक रूप बना वो 4 भुजाएं ही बनी। और ये केवल इसमें ही नहीं, बल्कि दोनों संप्रदायों में देवी के लक्षण समान हैं, केवल वाहनों का अंतर है, जैसा कि हमने शुरू में आपसे कहा था। नवीं सती पर जैन परंपरा में नवीं सती या 10वीं सती, 9वीं 10वीं के मध्य श्रुत देवता यानी सरस्वती को संगीत की देवी के रूप में प्रतिष्ठित किया जाने लगा, और वरद मुद्रा के स्थान पर उनके करों में वीणा का प्रदर्शन होने लगा। और यही कारण है कि संगीत से जब वो संबद्ध हुई तो संगीत और नृत्य की देवी होने के कारण उनका वाहन प्रतीक के रूप में फिर बदल जाता है और मयूर आ जाता है, हंस की जगह मयूर आ जाता है। इन्हीं संक्षिप्त बातों के साथ हम सीधे अब स्लाइड पे आते हैं। अब देखें, मैं आपके सामने ये देवगढ़ की सरस्वती मूर्ति, और ये मैं देवगढ़ की वह मूर्ति दिखा रहा हूं जो अब आपको देखने को वहां पे नहीं मिलेगी, दिखेगी भी आज, अब ये दिखेगी तो यहां से दिखेगी, इतना ढका हुआ मिलेगा, आप इसे पहचान ही नहीं सकते, क्योंकि ऐसे भी नहीं पहचान सकते आप, क्योंकि सरस्वती की सारी भुजाएं टूटी हुई हैं, कोई आयुध नहीं हाथ में, और वाहन भी अगर ढक दिया जाए तो क्या बचता है। वर्तमान में देवगढ़ में यहाँ से इसे जमीन में ढक दिया गया, यानी जो रही सही कसर थी वो भी पूरी हो। और जरा प्रतिमा का सौंदर्य देखें आप, टूटी होने के बावजूद भी सौंदर्य देखें, शारीरिक सौष्ठव देखें, चेहरे पे स्पष्ट, और ऊपर 3 तीर्थंकर आकृतियां, यानी जिन वाणी का, अब यहां से पहली जो मूर्ति देखी वहां पे जिन मूर्ति नहीं है, और जैन से उसका संबद्ध नहीं बनता, लेकिन यहां बनता है। और ये देवगढ़ की मूर्ति को मैं क्यों लेके आपके सामने आ रहा हूं, जैसे गौरव जी ने बताया कि देवगढ़ की वो उन्होंने पुस्तक देखी भी है और पढ़ी भी है, तो गौरव जी जानते हैं कि जैन परंपरा का सबसे लंबे इतिहास का जो क्षेत्र है वह देवगढ़ है, जहां पर प्री हिस्टोरिक पीरियड से लेकर लगभग 19वीं सदी ईस्वी तक का हमें कला सामग्री मिलती है। और यही नहीं, महत्वपूर्ण बात यह है कि वह एक सारस्वत साधना का केंद्र है। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि वहां पे विदाउट रॉयल पैट्रनेज वहां पे जो भी डेवलपमेंट हुआ वह कोई किसी शासकीय समर्थन के बदौलत नहीं हुआ। वहां पर जैन संघ, जैन व्यापारी और जैन जो समाज है उसके द्वारा ये निर्मित किया गया है। और आप देखें कि मैं इसे सारस्वत साधना का केंद्र क्यों कह रहा हूं, जरा आप इस मूर्ति को ध्यान से देखिए। मूर्ति के देवी के कटी के पास 2 आचार्यों को आप बैठे हुए देख पा रहे हैं, 2 आचार्यों की, यहाँ पे ये तो पूजक आकृतियां हैं, ये तीर्थंकर आकृतियां हैं, छोटी लघु तीर्थंकर आकृतियां हैं, उन्हीं की वाणी है, तो स्वाभाविक रूप से उनको दिखाया जाएगा। लेकिन परिकर में जिस स्थान पर और जिस रूप में यहाँ दिखाया,
यानी सरस्वती और सरस्वती की साधना। और इस प्रकार सारस्वत साधना का सबसे सुंदर उदाहरण आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप देवगढ़ न जाइए, केवल इस मूर्ति को देख लीजिए, और यहाँ पर आप हंस स्पष्ट देख सकते हैं, नीचे की उसमें हंस स्पष्ट देख सकते हैं। यानी कोई भी आयुध नहीं है, वरद नहीं है, कमंडलू नहीं है, पुस्तक नहीं है, उसके बाद भी। और दूसरा, मूर्ति का जरा ग्रेस देखें आप, आहा क्या बात। नेक्स्ट, देवगढ़ कितना एक्सपेरिमेंट कर रहा है। हो सकता है कि मैंने देवगढ़ पे थोड़ा ज्यादा अध्ययन किया है तो इसलिए आपको लगे, लेकिन देखिए कि एक्सपेरिमेंट क्या करता है। वो केवल शब्दों तक नहीं रहता है कि जिनवाणी, और ज्ञान की महत्ता को कहां तक ले जाता है कि दो जिनों के समांतर देवी सरस्वती को स्थापित करता है। नीचे हंस, नाम उत्कीर्ण है, सरस्वती नाम उत्कीर्ण। और किसके समानांतर? हम सभी जानते हैं कि जैन परंपरा में तीर्थंकरों को देवाधिदेव कहा गया है, उनसे बड़ा, उनसे ऊपर कोई नहीं। और वहां पे उनके समांतर, यानी उन्होंने कहने की क्या कोशिश की? उन्होंने कहने की ये कोशिश की कि ज्ञान सर्वोपरि है। भक्ति, केवल भक्ति नहीं, भक्ति के साथ ज्ञान, और ज्ञान भक्ति जब एक साथ मिलती है तब वह पूर्णता की ओर जाती है। इसी बात का संकेत है। और ये एक इनोवेटिव, यह एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रयोग है। यानी जितनी बातें हम कह रहे हैं और जितना कहें वो कम है इस मूर्ति के लिए। आप देखें कि कलाकार ने समस्त ग्रंथों का निचोड़ यहाँ पे लाके रख दिया। एक मूर्ति के माध्यम से वो सारी बातें उसने कह दी जो वो कहना चाहता है, जो शास्त्र बराबर कह रहे हैं, जो आचार्य हमारे बराबर कह रहे हैं, उन बातों को उसने बड़ी सहजता से। और इससे बात करने के लिए क्या हमें बहुत जानने की आवश्यकता है? इसीलिए मैंने कहा कि मूर्तियां अपने मौन में भी बेहतर संवाद करती हैं, मुखर संवाद करती हैं, खुली संवाद करती हैं, और सभी से समान संवाद करती हैं। दूसरी, अब हम थोड़ा आगे बढ़े, पीरियड से आगे बढ़े, और ये कहां देखो, यही तो बात करते। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर, और कहाँ है, बहुत महत्वपूर्ण ये है। अरे यही रख के बात ही खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर के दक्षिणी अधिष्ठान की मुख्य रथिका की मूर्ति है ये। और स्वयं समझ सकते हैं कि इसके और क्या, सिक्स्थ आर्म, अब यहाँ से देवी का रूप बदल रहा है। अभी तक वो केवल ज्ञान की देवी थी, अब पुस्तक के साथ, यानी ज्ञान के साथ, वह संगीत की देवी के रूप में उनका एक तरीके से रूपांतरण हो जाए। यानी तमाम समस्त प्रकार की जिसे प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ने समस्त कलाओं का ज्ञान ब्राह्मी और सुंदरी को दिया, उसका एक तरीके से पर्सोनिफिकेशन आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। और ऊपर देखें, दो छोटी तीर्थंकर आकृतियां, यानी अब अनिवार्य तत्व बन जाता है। सरस्वती मूर्ति में आप ऐसे कोई भेद नहीं कर सकते कि ब्राह्मण धर्म की सरस्वती है कि जैन धर्म की सरस्वती है। अंतर्भेद कहाँ है? आयुध में है नहीं, वाहन में है नहीं, किसी चीज में नहीं है। अंतर कहाँ है? या तो मुकुट में तीर्थंकर मूर्ति होगी या पार्श्व में तीर्थंकर की मूर्ति होगी, वो आधार बनता है। श्वेतांबर दिगंबर परंपरा का मसला अलग है। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाए, हैं विमल बसही तक आ जाए, 1150 ईस्वी तक आए। सरस्वती अब कितने आर्म हो जाती हैं? 16 आर्म, 16 भुज। केवल ये हाथ नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इन हाथ के साथ देवी की जो प्रभावना है, देवी के प्रति जो समाज की जो प्रभावना है वह, और यहाँ पर स्पष्ट रूप से दोनों तरफ दो डांसिंग फिगर है, और ये डिवाइन डांसिंग फिगर
हैं। क्यों? दोनों 4 आर्म डिवाइन फिगर हैं। इंस्ट्रूमेंट के नजरिए से बाद में देख लेंगे, पहले जरा इसे देख लें। इस मूर्ति की एक और विशेषता है, वह ये है कि एक तरफ ज्ञान पुस्तक, हंस, वीणा के रूप में संगीत, और तीसरी तरफ देखें दोनों हाथों में 2 मापन यंत्र हैं, एक तरफ अंकुश और एक तरफ मापन यंत्र, यानी वो आर्किटेक्चर की भी देवी हो गई। ज्ञान, संगीत, अन्य ललित कलाओं के साथ वह उसकी भी देवी हो गई। और इसका अगला प्रमाण इसी को प्रमाणित करता है, और वो आपके सामने है। ये भी विमल बसई की मूर्ति है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं कि वो षोडश भुज नहीं है, पहली मूर्ति की तरह षोडश भुज नहीं है, ये चतुर्भुज है। लेकिन महत्वपूर्ण क्या है, जिसका संकेत मैंने पहली मूर्ति में किया था, अब यहाँ पर यह जो इस मंदिर के आर्किटेक्ट हैं, इस मंदिर के आर्किटेक्ट, बाकायदे यहाँ पे इंस्क्रिप्शन मिलता है। और वो इंस्क्रिप्शन क्या मिलता है? वह इंस्क्रिप्शन मिलता है कि वो जो इसके आर्किटेक्ट हैं उनके नाम बाकायदा मिलते हैं, और नाम मिलने के साथ एक के हाथ में सूत है और एक के हाथ में पैमाना है। आज भी आप जानते हैं कि जब आप काम कराते हैं तो मिस्त्री के हाथ में क्या होता है? सूत, जिससे वो सीधा रखता है, और दूसरा वो स्केल, जिससे वो नापता है। दोनों, यानी ज्ञान की देवी, अक्षमाला, वरदाक्ष है। अक्षमाला नहीं, ये वरदाक्ष, वरद भी है और अक्ष भी है, और जब दोनों संयुक्त हो गए तो वरदाक्ष हो गया। कमंडलु, पद्म, पुस्तक, और साथ में 2 पूजक आकृति, और पूजक आकृतियां भी कौन? जो मेन आर्किटेक्ट है। और उनके हाथ में क्या? यानी संकेतों में कैसे शिल्पकार वह बात कह जाता है जो बात आप सोचते हैं, मन में विचार करते हैं। और इस मूर्ति की तो क्या कहने हैं। अभी आपने को हमने देवगढ़ की मूर्ति दिखाई थी, इसके हाथ खंडित थे। अब इसके स्थान पर, उसके स्थान पर इसको आप प्रोजेक्ट करें। ये 4 आर्म सरस्वती, बीकानेर राजस्थान पल्लू की यह मूर्ति है, जो कि वर्तमान में नेशनल म्यूजियम में है। विश्व प्रसिद्ध मूर्ति है। यानी अब जरा देखें, मैं क्यों कह रहा हूं कि जैन परंपरा में सरस्वती को इतना महत्व केवल साहित्य में ही नहीं मिला, पुरातत्व में भी मिला। आप देख रहे हैं कि कैसे निरंतर विकास हो रहा है। महत्वपूर्ण क्या है? जो जैन परंपरा की या यूं कहें कि सरस्वती की जो सुंदरतम मूर्ति है, वह मूर्ति है जैन परंपरा से। यहाँ पर देखें, सरस्वती के मुकुट में तीर्थंकर विद्यमान है। यानी 2 तरीके से दिखाया गया, या तो परिकर में तीर्थंकर या तो मुकुट में तीर्थंकर। यहाँ पर उस ने उसके कंपोजिशन को थोड़ा चेंज किया, वेरिएशन पर। शायद सिन्हा जी ड्रॉप हो गए, हम वेट करते हैं एक मिनट उनका। अब आ गया। हाँ जी सिन्हा जी। गौरव जी। हाँ जी सिन्हा जी आ गया। हाँ जी। अब जरा ये मतलब एक तरफ पहली मूर्ति कहाँ से मिली? जैन परंपरा से। और सबसे सुंदरतम मूर्ति कहाँ से है? जैन परंपरा से। अब आप इससे महत्ता समझ लीजिए। कुछ कहने, शारीरिक संरचना देखें, नीट एंड क्लीन ऑर्नामेंटेशन देखें, पूरा का पूरा परिकर देखें, शरीर का लोच देखें, जिस दृष्टि से आप विचार करना चाहें। इसी मूर्ति पे लगातार बात की जा सकती है, लेकिन हमें अन्य भी बातें करनी है। और यहाँ पर पद्म, पुस्तक, कमंडलु, वरदाक्ष, वही परंपरा जो पूर्वत परंपरा चली आ रही है। और आप देख रहे हैं
एक षड्भुज और षोडशभुज को छोड़ दे तो मूर्तियां चतुर्भुज ही, क्योंकि चतुर्भुज जो सरस्वती हैं वह ज्यादा लोकप्रिय रही। दो मूर्तियां आपके सामने और रख रहा हूं, एक पंथाली जूनागढ़ गुजरात से है ये मूर्ति, और दूसरी इस समय ब्रिटिश म्यूजियम लंदन में सुरक्षित है, बहुत ही ग्रेसफुल मूर्ति। और यहाँ पर देखें 3 तीर्थंकरों को उसी परंपरा में, देवगढ़ वाली परंपरा में, मार्बल में है लेकिन परंपरा क्या है, वही देवगढ़। अब यहां से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि देवी के हाथों में क्या रहा होगा, पद्म, अक्षमाला, स्वाभाविक है कि ये वरद मुद्रा रही होगी, और यहाँ पे आप पद्म कह सकते हैं, ये रहा हो सकता है। तो चतुर्भुज और तीर्थंकर की आकृतियां आप देखें, टोटल 5, यानी पंचतीर्थी के रूप में, पंचतीर्थी में उनकी जिनवाणी के रूप में सरस्वती, और सौंदर्य की तो बात ही क्या कहनी है। लेकिन यह मूर्ति भी बहुत ही महत्वपूर्ण, टूटी हुई है, खंडित है, लेकिन अपने पूर्ण स्वरूप में विद्यमान है। यह भी मूर्ति लाडनू की मूर्ति है, लेकिन अब देखिए समय काल के साथ वो 11वीं सदी की मूर्ति थी और ये 12वीं सदी की मूर्ति है। ये लाडनू की मूर्ति है, वहां के जैन मंदिर में है। यहाँ पे इंस्क्रिप्शन भी है, बाकायदा इंस्क्रिप्शन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऊपर तीर्थंकर भी विद्यमान है, मार्बल में है, ये कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अगर हम ग्रेस की दृष्टि से देखें तो ये ग्रेस आपको इसमें थोड़ा सा ऑर्नामेंटेशन के, हैवी ऑर्नामेंटेशन के कारण वह ग्रेस थोड़ा सा लूज कर जाता है। ये स्वाभाविक है, समय काल के परिप्रेक्ष्य में ये होना स्वाभाविक है। और यह मूर्ति बहुत महत्वपूर्ण है। अब उस संदर्भ को आप ध्यान करें जो मैंने बप्प भट्टी सूरी के संदर्भ में कहा था कि शारदा स्तोत्रम में उन्होंने कहा कि जब सरस्वती यंत्र की पूजा करें तो उसके साथ 16 महाविद्याएं, क्या बोलते हैं, नवग्रह, इनके भी पूजन हो। यहाँ पर तीर्थंकर आकृतियों के साथ दोनों ओर के स्तंभों पर 16 महाविद्याओं का अंकन, यानी जिनवाणी, ज्ञान की देवी, संगीत, देखिए संगीत का भी कार्यक्रम है इसमें, संगीत की देवी, और तमाम प्रकार की जो विद्याएं, जो 16 विद्याएं, महाविद्याएं जिन्हें कही जाती हैं, उनकी भी अधिष्ठात्री देवी सरस्वती। तो ये आप हम कह सकते हैं कि इसे और सरस्वती का संदर्भ और जैन परंपरा में उसे और महत्वपूर्ण बनाता है। गंगा गोल्डन म्यूजियम बीकानेर में सुरक्षित है, ये इसकी महत्ता है। बाकी ये मूर्तियां दक्षिण भारत से नितिन जी ने हमें भेजी थी, कुछ तो ये तो नेशनल म्यूजियम में उन्होंने बताए। दक्षिण भारत की परंपरा में हमें 2 चीज दिखाई पड़ती है। मूर्तियां, ऑर्नामेंटेशन उनका बढ़ता है 12वीं सदी के बाद, मैंने कहा ही कि स्वाभाविक है कि उसमें ऑर्नामेंटेशन बढ़ेगा, लेकिन 14वीं सदी की जो मूर्ति है उसमें वही सॉफ्टनेस मौजूद है, यानी देवी के। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि यहाँ पे हमें देवी के साथ कोई तीर्थंकर आकृति नहीं दिखाई पड़ती। केवल नेशनल म्यूजियम राजस्थान से जो मूर्ति है उसमें तीर्थंकर की आकृति है। यहाँ पर हमें कोई भी तीर्थंकर आकृति नहीं दिखाई पड़ती। हाँ, जैन मंदिर में होने के कारण, जैन मंदिर में होने के कारण उनका एफिलिएशन हम जोड़ पाए जैन परंपरा से, लेकिन इस मूर्ति में हमें कहीं भी तीर्थंकर की आकृति नहीं दिखाई पड़ती। बाकी सारी आइकोनोग्राफी, पद्म और वरदाक्ष है, अभय के साथ वो है, ये वरद नहीं है बल्कि अभय है, और अभय के साथ अक्षमाला है, पुस्तक है, बाकी सारी चीजें
पद्म है, यहाँ पे पाश है, अंकुश है, वरदाक्ष है, पुस्तक है, सरस्वती है, ये सारा कुछ ठीक है। लेकिन वह जो उत्तर भारत की परंपरा थी, उस परंपरा के अनुरूप हमें सरस्वती की मूर्ति के साथ तीर्थंकर आकृति न तो उनके मुकुट में दिखाई पड़ता है और न ही साथ में दिखाई पड़ता है। यानी दक्षिण भारतीय परंपरा में जैन जो सरस्वती हैं, उनको अगर हमें संबद्ध करना है तो केवल मंदिरों के आधार पर संबद्ध करना होगा, न कि उसमें कोई अलग आइडेंटिफिकेशन है। जैसा कि उत्तर भारत, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश से लेके आप मध्य प्रदेश और पूरे के पूरे क्षेत्र में देखते हैं कि निश्चित रूप से सरस्वती के माथे पे या सरस्वती के परिकर में तीर्थंकर आकृतियां दिखाई पड़ती हैं और उसके आधार पर उनका जैन एफिलिएशन बन जाता है, वो हमें नहीं दिखाई पड़ता। यही नहीं, जैन मंदिरों के जो द्वार शाखाएं हैं, मेन एंट्रेंस हैं, डोर लिंटल है, वहां पर तीर्थंकर के साथ सरस्वती का अंक है। एक तरफ सरस्वती और दूसरी तरफ लक्ष्मी, यानी ज्ञान और ऐश्वर्य के साथ का जो सुंदर समावेश है। और आप देख लीजिए, ये तीनों चीजें मौजूद हैं, आध्यात्म, ज्ञान और समृद्धि। समृद्धि केवल धन की समृद्धि नहीं होती है, मन की भी समृद्धि होती है, आत्मा की भी समृद्धि। अगर इसको हम जोड़ के देखें तो ये तीनों बात एक साथ पूर्ण होती है। और इससे कि मंदिर में, किसी भी मंदिर में सबसे महत्वपूर्ण होता है उसका गर्भगृह। गर्भगृह के बाद जो दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज होती है वो होता है द्वार स्तंभ, डोर लिंटल, जिसे हम द्वार उत्तरंग कहते हैं। हमें कुछ भी नहीं मिला, केवल द्वार उत्तरंग मिल जाता है और उसके आधार पे हम पहचान कर पाते हैं, क्योंकि डोर लिंटल पे इसको हम कहते हैं ललाट बिंब। ललाट बिंब की आकृति स्वतः ही पहचान बता देती है, मंदिर टूटा हो, कुछ भी हो। आप देखें तमाम हमें आज खजुराहो से लगभग 40 के लगभग हमें ये मिलते हैं, लेकिन हम द्वार स्तंभों और तो अभी इस मूर्ति की बात करके अब मैं इसे समाप्त ही करने वाला हूँ, इसलिए बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य ये है कि जीवन की जो तमाम चीजें हैं उसमें जिन जिन चीजों की आवश्यकता है उनके एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रूपांतरण के रूप में हमें ये सब दिखाई पड़ती हैं। और ये पार्श्वनाथ मंदिर की एक विशेषता है। यह अकेला मंदिर है जिसमें 2 गर्भगृह हैं, एक पूर्व की तरफ है, एक पश्चिम की तरफ है। खजुराहो के पार्श्वनाथ मंदिर की बात कर रहा हूँ। अकेलौता मंदिर है शायद जिसमें 2 गर्भगृह हैं। एक पूर्व की तरफ है मूल, जिसमें पार्श्वनाथ वस्तुतः ही आदिनाथ मंदिर है। इसमें पार्श्वनाथ की मूर्ति 1880 में लाके रख दी गई थी, इसलिए पार्श्वनाथ कहा जाता है। लेकिन यह आदिनाथ के मंदिर है, जो कि पाहिल भी लिखता है कि आदिनाथ का मंदिर है। इसके साथ जब हम पश्चिमी तरफ जाते हैं तो आदिनाथ की ही मूर्ति मिलती है, और पूर्वी तरफ जो जहाँ पे पार्श्वनाथ की प्रतिमा रखी हुई है उसका पूरा परिकर आदिनाथ मूर्ति का है। फिलहाल वो एक दूसरा विषय है, उस पर फिर कभी। तो फिलहाल ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर भी आप देखें तो एक तरफ सरस्वती, बीच में चक्रेश्वरी और एक तरफ अंबिका, इन सारे का एक साथ, यानी एक तरफ ज्ञान, ललित कला, मनोवांछित फल की प्राप्ति, और दूसरी तरफ जिनवाणी के जिनके समानांतर खड़ा करना, और तीसरी तरफ जो 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 यक्षियों की परंपरा, तीर्थंकरों के बाद यक्षियों की जो परंपरा है वह महत्वपूर्ण है। यानी वो जो कल्ट डेवलप हुआ उनके साथ सरस्वती को रखना यह महत्वपूर्ण बनाता है। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सिन्हा जी। एक बहुत ही डिफरेंट व्यू से हमने अलग अलग सरस्वती के विषय में जाना,
बहुत ही डिटेल में आपने इस बारे में बताया हमें। अगर किसी के कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चैट बॉक्स में अपना अजीत जी बेनाडी ने लिखा है, आप अभी पूछ सकते हैं। अजय बेनाडी जी का प्रश्न है सिन्हा जी, उनके अनुसार तत्वास सूत्र में जो एक प्रमुख जैन ग्रंथ है, शायद आपने पढ़ा हो, उसमें एक गाथा में लिखा है, जो रिसाइडिंग ऑन द लोटस, ओके, सो पुष्कर लेक पर पुष्कर लेक पर रहते हुए श्री हरि धृति कृति बुद्धि और लक्ष्मी, इन अलग अलग रूपों से, इन नामों से उनको जाना जाता है। सो बुद्धि विजडम यानी नॉलेज की देवी मानी जाती है, मोर देन नॉलेज, विजडम इज मोर देन नॉलेज। सो उसके अनुसार क्या कोई व्याख्या है जो सरस्वती के बारे में आपने पढ़ी हो, या आपके इस संदर्भ में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऐसा है गौरव जी, मैंने आपको शुरू में ही कहा, हर ग्रंथ इतने विस्तार में बात करता है जी। मैंने बार बार कहा कि जैन परंपरा में सरस्वती पे जितने विस्तार में बात की गई वो शायद किसी परंपरा में बात की गई, और उन्हें हर परंपरा हर चीज से जोड़ा गया। एक तरफ तंत्र साधना से जोड़ा गया, दूसरा यही नहीं, वहां पे तो ब्राह्मणी के रूप में इनका उल्लेख है, ब्राह्मणी के रूप में उनका उल्लेख है। केवल उतना ही तक सीमित थोड़ी नहीं रहता, अगर प्रभावना सूत्र की बात करें तो उसमें तो ब्राह्मणी के रूप में उनका उल्लेख मिल जाता है। तो कई सारी कथाएं हैं, कहे अनंत हरि कथा अनंता। फिलहाल जी 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 सिन्हा जी, ओके, कोई और प्रश्न नहीं है? मेरा एक प्रश्न है, बिकॉज मैंने जैसे बताया, मैं देवगढ़ में बहुत ज्यादा मेरी रुचि रही है, लगभग 10-12 सालों से मैंने काफी उस बारे में अध्ययन किया है, अपने रूप से अध्ययन किया है अपनी लिमिटेड नॉलेज में। सो मेरा एक प्रश्न है कि देवगढ़ या किसी भी और में आपकी अनुभव में ऐसा आया हो कि जैसे आपने बताया कि टाइम पीरियड के साथ अलग अलग जगह, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, ईस्ट वेस्ट, अलग जगह पे सरस्वती का रूप चेंज हुआ, क्या आपने उसको? रूप चेंज नहीं हुआ, थोड़े बहुत थोड़ा चेंज हुआ, या जैसे लाडनू की प्रतिमा मैंने भी देखी, वो होता है गौरव जी, वो स्वाभाविक है, क्षेत्रीय विशेषताएं। और करेक्ट, मेरा प्रश्न वही है कि जो उस समय का जो राजा हुए, या उस समय जो कला स्थापित्य था जो फेमस था टाइम के अनुसार, जैसे अगर नागर शैली में खजुराहो के मंदिर बने तो वो शैली वहां पर दिखी, तो क्या आप लोगों को लगता है ये सिर्फ शैली का ही प्रभाव है, या उसके मीनिंग में भी चेंज हुआ? जैसे आपने एक सब्जेक्ट टच किया कि उसका मीनिंग बदल गया, बट क्या वो मीनिंग शैली की वजह से ही बदला, या वो उसको लोगों ने माना कि अच्छा इसको हम आर्किटेक्चर की देवी मानेंगे, इसको हम ज्ञान की देवी मानेंगे, इसको हम संगीत की देवी मानेंगे, उस मतलब जो स्थापत्य था उसका अलग समाज पर क्या प्रभाव था? पहले तो आपके अंतिम प्रश्न का जवाब दे दूं, फिर उसके बाद आपके पहले प्रश्न क्या था। सिंधु सभ्यता में सरस्वती नदी का जो संदर्भ है वो खुदाई में मिल रहा है, तो उस पे एक अलग परिचर्चा का विषय है वो। उस पे बाद चलिए, तो केवल इतना समझ लीजिए कि सरस्वती का संदर्भ है, लेकिन कोई ऐसा पुरातात्विक इधर से सिंधु सभ्यता से नहीं मिलता, बल्कि वो अलग एक हुए, और पीरियड वही है। तो सिंधु नदी का अस्तित्व था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब गौरव जी के प्रश्न पे आते हैं। गौरव जी, आपने कहा, देखिए कई चीजें काम करते हैं। जब कोई क्षेत्र में कोई शैली डेवलप होती है तो वह हम धर्म उसे नहीं बांटते। शैली के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण होती है, स्कल्प्टर कौन है? आप राजमिस्त्री से पूछते हैं कि क्या वो कहाँ का है, उसका धर्म, उसकी जाति, बल्कि हम उससे बताते हैं कि हमें क्या बनवाना है। ठीक है ना? तो स्कल्प्टर या आर्किटेक्ट तो एक ही जैसा है। उसे, हाँ, वह अलग अलग धर्मों के अलग अलग मूर्तियों, उनके वर्णन से जरूर है कि वह परिचित होता है, उनके संदर्भों से परिचित होता है, इसीलिए उसे सूत्रधार कहा गया। इसीलिए उसे तमाम अन्य नाम मिलते हैं, जिसमें वह आचार्यों के सानिध्य में बैठकर उनका पहले मनन करता था,
अध्ययन करता था और फिर रचता था। आधार तो कहीं ना कहीं से आएगा, आधार वही क्षेत्र विकसित करेगा। तो इस आधार पे हम शैली को भी देखें। आप तो चूंकि देवगढ़ में काम किए हुए हैं, आप बताइए ना कि कितने प्रकार के मंदिर जाते हैं वहाँ, कितनी शैलियां मिल जाती हैं वहाँ, कोई गिनती नहीं है वहां पर। बताएं। कोई गिनती मंदिरों की इतनी शैलियां। अब वहीं बगल में है देवगढ़ का दशावतार मंदिर मिल जाता है, दशावतार है। इवन शांतिनाथ मंदिर अलग मिलेगा, मंदिर संख्या 15 आपको अलग दिखाई पड़ेगा। मंदिर उपाध्याय परमेष्ठी की मूर्तियां केवल और केवल सबसे पुरानी देवगढ़ में ही मिलती हैं, बाकी जगह मिलती ही नहीं है। सबसे केवल पुरानी ही नहीं, सबसे ज्यादा इतना उपाध्याय और आचार्यों की मूर्तियां तो कहीं मिली ही नहीं, कहीं नहीं मिलती है जितनी देवगढ़ में मिलती। हाँ, चलिए आप सभी को एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप दो प्रश्न है। एक है, या सरस्वती अब तक सिंधु सभ्यता में सरस्वती की कुछ प्रमाण मिले हैं क्या? कृपया समाधान करें। वो ले लिया। कोल्हापुर से पूछ रहे। अभी मैंने जवाब दिया। वो क्वेश्चन हो गया नितिन जी। अगला क्वेश्चन सिन्हा जी, एक लास्ट क्वेश्चन है। सरस्वती के आजू बाजू में मिलने वाले 5 तीर्थंकर, जो हमने कुछ प्रतिमाएं देखी जिसमें 5 तीर्थंकरों का रूप था, प्रश्न है कि वो पंच ज्ञान के रूप को इंटरप्रेट करना चाहते हैं क्या? वो ऐसा दिखाना चाहते हैं? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। इसलिए वो जिनवाणी कही। चले, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे अभी कहीं निकलना भी है। आज बस मैं आपका क्लोजर करता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। थैंक यू डॉक्टर सिन्हा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिल्कुल ही अलग और एक बहुत ही डिफरेंट विषय जो हमने ज्यादा जिस पर बात नहीं किया था, बहुत कम लोग इस विषय पर जानते हैं, उस पर हमारा मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद। सभी श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इसको केवल एक पुरातात्विक सांस्कृतिक विरासत की दृष्टि से देखें। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अध्ययन की जरूरत है। अगर हम उसको धर्म से जोड़ते हैं, अगर हम उसको परंपराओं से जोड़ते हैं, तो उसमें बहुत रूप से उसको देखा जा सकता है। सिन्हा जी ने एक पर्सपेक्टिव से उसके बारे में बताया, जो उसके लिए बहुत उसका सुंदर विवेचन किया। ओल्डेस्ट सरस्वती प्रतिमा हो, चाहे दक्षिण भारत, उत्तर भारत हो, दिगंबर श्वेतांबर ब्राह्मण परंपराएं हो, आइकोनोग्राफी हो, सभी सब्जेक्ट्स के बारे में सिन्हा जी ने बहुत अपने अनुभव, लेखन, रिसर्च को सहज रूप से समझाया और हमारा मार्गदर्शन किया। मैं एक लाइन जो बार बार सिन्हा जी ने बोली, मैंने उसको नोट किया, शायद मैं उसको आगे यूज करूंगा। मूर्तियां मौन रहकर भी संवाद करती हैं। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू सिन्हा जी, बहुत धन्यवाद आपका। बहुत अच्छा व्याख्यान किया सर। सरस्वती के बारे में बहुत डिफरेंट डायमेंशन दिया आपने, अलग अलग धर्मों से, अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग आर्किटेक्चरल शैली से। सेकेंड सेंचुरी तो ऑलमोस्ट 15-16 सेंचुरी, ऑलमोस्ट 1500 सालों का सरस्वती जी का जो व्याख्यान दिया है, वो एक अनोखा, एक सेपरेट वर्ल्ड पे आपने लेके गया हमें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सारा तंड जैन हेरिटेज सेंटर टीम से बहुत बहुत धन्यवाद, और सारा जय जिनेंद्र सर। और जो प्रश्न रहेंगे हम लोग फिर हमारा शायद आवाज पहुंच रही जी जी, फिर कभी हम लोग मिलेंगे, किसी अन्य विषय पे बात करेंगे, और जो प्रश्न बचे रह गए उस समय हम लोग उसको देखेंगे। सभी को प्रणाम, जय जिनेंद्र।